Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 8 of the chapter Moving Charges and Magnetism. Previous lecture I may discuss the motion of a charged particle inside a magnetic field. Means the trajectory or the path followed by a moving charge inside a magnetic field. We discussed about three different situations. The first one is when the charged particle moves parallel to the magnetic field or opposite to the magnetic field. तो जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करिवो along the magnetic field or opposite to the magnetic field, then it will move with the same velocity along the same straight line. There will be no change in the path because there will be no magnetic force acting on the charged particle. Case 2 रे आमे डिस्कस करथिले if the charged particle moves in a perpendicular magnetic field, तो सही केस रे magnetic force will be maximum and the charged particle will describe a circular path. से circular path रो radius रो formula होची r equal to mv by qb. The time period of revolution is 2 pi m by qb and the frequency of revolution is qb divided by 2 pi m. Case 3 रे आमे डिस्कस कले if the charged particle enters into the magnetic field such that the angle between v vector and b vector, माने the angle between velocity and magnetic field is not 0 degree, not 90 degree or not 180 degree. It is some arbitrary angle, maybe 30 degree, 45 degree, 60 degree like this. तो जदि गोटे चार्ज पार्टिकल गोटे आर्बिट्रारी एंगल रे एंट्री करूची इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, then it will describe a helical path. अब से helical path रो pitch रो formula होची 2 pi m v cos theta divided by qb. So ए सब जिनस हमें previous class रे discuss करथिले. तो आज हमें discuss करिबा about this topic Lorentz force. So Lorentz force रो meaning कौन ना हमें chapter 1 रे पढ़िचे जे a charged particle experiences electric force inside an electric field. जदि आमे गोटे चार्ज पार्टिकल नबा having a charge q and if it is placed inside a region of electric field E, then the electric force experienced by it will be charge times electric field, तामाने q into E. And in this chapter we discussed that a moving charge inside a magnetic field will experience a magnetic force. अब से magnetic force रो formula कौन ना Fm माने magnetic force is equal to q into v cross b. तामाने जदि गोटे चार्ज पार्टिकल can experience both electric as well as magnetic force, imagine that in a region we have both electric field and magnetic field. जदि गोटे region रे both electric field थिबो आउ magnetic field थिबो आउ सेही region रे जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करबा स्टार्ट करबो, then से चार्ज पार्टिकल ऊपर दुईटा फोर्स आसीबो. गोटे आसीबो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गोटे आसीबो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. एंड द वेक्टर सम ऑफ these two forces is known as Lorentz force. Imagine that in a region we have both electric field as well as magnetic field. माने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अछि आउ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट अछि. तो सेही रीजन रे a charged particle will experience electric force. तो इलेक्ट्रिक फोर्स रो फॉर्मूला कौन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. आ मन रखो जदि चार्ज ता हेतिबो पॉजिटिव चार्ज, देन द पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स along the electric field, and if the charge is negative charge it will experience a force opposite to the electric field. So this is the formula for electric force. ठीक अछि. And if the charged particle is moving with a velocity v, then it will also experience a magnetic force, and the magnetic force is given by q into v cross b. q into v cross b. This magnetic force is obviously perpendicular to the plane which contains velocity and magnetic field. ठीक अछि. तो हमें देखिले जे जदि गोटे रीजन रे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अछि आ से रीजन रे जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करूची, then it will experience both these forces. And if we take the vector sum of these two forces, then the total force is known as Lorentz force. ता माने Lorentz force रा मीनिंग कोन? Lorentz force रा मीनिंग होची
the sum of electric and magnetic force, sum of electric and magnetic force. तो Lorentz force रो expression कौन आसीबो, एटा आसीबो F E vector plus F M vector, माने the total force, this is the Lorentz force, that is equal to the vector sum of electric force and magnetic force. तो electric force को लिख देबी Q into E vector plus magnetic force केते हबो, एटा हे जबो Q into V cross B vector. ठीक अछि. So the Lorentz force equal to, if I take Q common, then you have E vector plus V cross B vector. So this is the Lorentz force acting on the charged particle. Is that clear? तो एबे हमें डिस्कस करिबा गोटे टॉपिक ऊपर, सेटा होची वेलोसिटी सिलेक्टर. वेलोसिटी सिलेक्टर रो मीनिंग कोन? सपोज इमेजिन करो गोटे चार्ज रो गोटे बीम अछि, वी हैव ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ता माने ता देयर आर मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बट से चार्ज पार्टिकल माने वेराइटीज ऑफ वेलोसिटी रे मूव करूछंती. Suppose we have a beam of protons, or we have a beam of electrons, or a beam of alpha particles, but those charged particles inside the beam, they have varieties of velocities. समस्ते same speed रे move करूनांती, सेमानकर speed different अछि. ठीक अछि. तो आमु को हाजिबो, our task is to filter out those charged particles having a certain velocity. We have to filter out those charged particles with a certain velocity. ता माने imagine करो, suppose in a beam we have millions of charged particles and we have to select those charged particles which are moving with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. आमे सही चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करिबा, ताकू कलेक्ट करिबा जो चार्ज पार्टिकल ला एतिकी स्पीड रे मूव करूची. There may be 100 of charge particles moving with this velocity. तो जेते भी चार्ज पार्टिकल मूव करथिबे एई पर्टिकुलर स्पीड रे आमे सेमानन को फिल्टर करिबा बा सेपरेट करिबा. सो हाउ टू डू इट? तो एठी आमे यूज करिबा एई लोरेंज फोर्स रो कांसेप्ट. तो एठी मन रखो, आमे देखिले कोन ना, जदी गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि आ मैग्नेटिक फील्ड अछि एंड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द रीजन, इट एक्सपीरियंसेस बोथ द फोर्सेस. तो एबे मु गोटे एमिति गोटे अरेंजमेंट करिबी जो थिरे इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो आउ मैग्नेटिक फील्ड भी थिबो. सपोज इमेजिन करो, एटा होची गोटे रीजन, आई हैव टेकन टू प्लेट्स, एठी दुईटा प्लेट अछि एंड ए रीजन रे मैग्नेटिक फील्ड भी अछि. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दिस रीजन. सपोज एमिति क्रॉस मार्क दउचे, द क्रॉस मार्क रेफर्स टू inward magnetic field, uniform and inward magnetic field. ठीक अछि. त माने ए रीजन रे गोटे मैग्नेटिक फील्ड अछि which is uniform and inward to the plane of the board. ओके. तो एबे सपोज हमें एपटे कोन करबा, से चार्ज रो बीम को एमते पास करेबा. तो सपोज गोटे चार्ज पार्टिकल, तार चार्ज होची Q. सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. जदि चार्ज पार्टिकल एमती एंट्री करुछि विथ ए वेलोसिटी v, तो एबे में देखिबा ए जो चार्ज पार्टिकल ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कुआडे आसीबो. We know that when the charge particle enters into a perpendicular magnetic field, to find the direction of magnetic force we can use Fleming's left hand rule. तो एबे ए जो चार्ज हमें नहींचे Q amount रो चार्ज, this is positive charge, it has velocity v, it is moving in this direction. जदि मु एबे यूज करबी Fleming's left hand rule, where the index finger will point towards magnetic field, the central finger will point towards the motion of the charge particle, the thumb will represent the direction of magnetic force. तो जदि मु एबे अप्लाई करबी, देखो index finger हेबो inward because the magnetic field is inward, the central finger will be towards right because this charge particle is positive, it is moving towards right. The thumb is showing in the upward direction. त माने ए चार्ज पार्टिकल ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आसीबो, दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड, Fm. ठीक अछि. ओके. सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स.
बट एबे मु कौन कही ना यही रिजियन रे मु इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड बोथ रखिबी तो एबे मु इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेनी ओनली मैग्नेटिक फील्ड शो करेची सपोज एबे मु इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेबी तो एबे मु कौन करेबी जदि ए अपर प्लेट को मु कर देबी पॉजिटिवली चार्ज्ड लोअर प्लेट कर देबी नेगेटिवली चार्ज्ड तो एबे कौन हबो हमको जणा अछि जे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट तो एबे कौन हबो ना ए रीजन रे गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हबो इज दैट क्लियर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ठीक अछि तो एबे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होची ऑन द प्लेन डाउनवर्ड अछि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ता माने एमिति अछंती दिस इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओके आको में कहिबा क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो मु एबे जो अरेंजमेंट नै छी से अरेंजमेंट रे आई हैव टेकन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आको में कहिबा क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर ओके तो जदि मु एई टाइप रो अरेंजमेंट नेबी जते बडे चार्ज पार्टिकल टा एंटर करिवो इनसाइड दिस रीजन मैग्नेटिक फोर्स आसीबो अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स रो फार्मूला कोन आसीबो q into vb बिकॉज एठी थीटा होची 90 डिग्री तो q vb sin 90 दैट इज q vb एट द सेम टाइम the charge particle will experience electric force जेहेतु एटा होची गोटे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आमे जानि छे ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड अछि डाउनवर्ड तबे कोन हबो दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and the electric field has the electric force has magnitude q into e charge times electric field magnetic force होची qvb the electric force is qe ठीक अछि तो हम देखि परबे एठी जे magnetic force and electric force they are oppositely directed to each other and एडा मु माने इंटेंशनली मु एम्ति डायरेक्शन नै छी काहे कि ना आई हैव टू डू ए टास्क से टास्क कोन ना जेते बड़े चार्ज पार्टिकल्स सब एपटे एंट्री करेंगे ओनली दोज चार्ज पार्टिकल्स विल बी फिल्टर आउट व्हिच हैव दिस वेलोसिटी ठीक अछि जो मानकर वेलोसिटी v थिबो से माने सेपरेट हे जिवे तो आ पई मु जो सेटअप करिवि से सेटअप रे मु कोन कली ना मु एन्श्योर कली जे जेते बड़े चार्ज पार्टिकल टा एई रीजन रे एंट्री करिवो ता ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आसीबो आउ मैग्नेटिक फोर्स भी आसीबो एंड the most important thing is that electric force और magnetic force रो direction opposite हवा दरकार ठीक अछि तो जदि electric force रो value और magnetic force रो value यदि equal हे जिवो if they are equal then the net force is zero if electric force is same as magnetic force then net force केते हे जिवो net force हे जिवो 0 ता माने चार्ज पार्टिकल एंट्री करूची इन ए रीजन हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट ता ऊपर नेट फोर्स 0 आसुची काहे कि ना इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करूची मैग्नेटिक फोर्स तो सेटा केते बळे पॉसिबल हबो जदी QE माने इलेक्ट्रिक फोर्स रो वैल्यू इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू QE इज इक्वल टू QVB जदी हमें Q कैंसिल कर दबा त पाई जिबा V इक्वल केते V होची E/B V इक्वल टू E/B तो आमे ए जो रिजल्ट पाइले ए रिजल्ट रो मीनिंग को ना जदी हमको कुहाई छी जे आमे एते के स्पीड रो चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करिबा ता माने आमे ए रीजन रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नबा और जो मैग्नेटिक फील्ड नबा से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रो रेशियो केते हबा दरकार इट शुड बी दिस मच हमको जेते की स्पीड रो चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करिया कुहाई छी that should be the ratio of electric and magnetic field for example जदि हम कुहाई जे 2 into 10 to the power 6 meter per second स्पीड थिबा चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करिया पय इट मे बी एनी चार्ज तो मु कोन करबी ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो
वैल्यू को सपोज मु नौची 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम and suppose the magnetic field is 10 to the power minus 2 टेस्ला suppose for example यदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जी 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आउ मैग्नेटिक फील्ड हो 10 to the power minus 2 टेस्ला तो से केस रे जदि आम ई आउ बी रेशियो बाहर करबा ई बाई बी केते आसीबो दा आसीबो 2 into 10 to the power 4 divided by 10 to the power minus 2 that is equal to 2 into 10 to the power 6 ठीक अच्छे। अब मन रखी था इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड रेशियो इज वेलोसिटी ठीक अच्छे तो ये मीटर पर सेकेंड आसो ताने मते जेतिकी स्पीड रो चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करिया कहई मते सही अनुसार एडजस्ट करिया पड़िबो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आई हैव टू एंश्योर दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू इच अदर जदि से माने सेम डायरेक्शन हे जिवे देन नेट फोर्सटा केबे भी जीरो हो पारिबनी तो जदि नेट फोर्स जीरो हम ताहले कौन हम सपोज इमेजिन कर एमती बहुत गुड़े चार्ज एंट्री करुछंती इनसाइड दिस रीजन तो जो चार्ज रो स्पीड एतिक थिबो सेई चार्जटा कौन हम स्ट्रेट लाइन रे बाहर की पड़ेबो काहेकि ना ता ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ एक्ट करिवो बट द नेट फोर्स बिकम जीरो ठीक अछि बट for some charge particle the net force will be upward जदि velocity मैच करूनी with this value तो सही चार्ज पार्टिकल कौन हे से माने आइदर एमती अपवर्ड डिफ्लेक्ट हेबे और डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हेबे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जदि मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर हे जिवो देन इलेक्ट्रिक फोर्स ताले कौन हबो से माने ऊपर को डिफ्लेक्ट करि जिवे बिकॉज़ मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड जदि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स देन दे विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स किंतु जदि दुईटा को फोर्स इक्वल हो जिवे देन दैट चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन तो आमको एंश्योर करिवार अछि जे आमे जो स्पीड रो चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करिबा बा ताको कलेक्ट करिबा according to that value we have to adjust the values of electric and magnetic field and we have to also ensure that their directions are such a way that magnetic force and electric force are opposite to each other जदि मु बे कोन करबी जदि मु लोअर प्लेट को कर देबी पॉजिटिव अपर प्लेट को नेगेटिव कर देबी देन कोन हबो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन so they will not cancel each other that's why the charge particle will not experience net zero force that's why मु कौन करिछि ना इंटेंशनली मु इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को रखिछि डाउनवर्ड ठीक अछि तो जदि मैं वेक्टर फॉर्म देखिबा एठी सपोज एटा होछि x एक्सिस ठीक अछि एटा होछि x एक्सिस एटा होछि y एक्सिस तो आमे देखि पारुछे जे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि इन द नेगेटिव y एक्सिस ठीक अछि आकु लिखिबी E into minus j cap magnetic field अछि the magnetic field is inward माने along negative z axis ठीक अछि आउ velocity अछि along I cap चार्ज पार्टिकल मूव करूची along I cap ठीक अछि तो एई केस रे आमे देखिबा जे इलेक्ट्रिक फोर्स केते आसीबो एटा आसीबो q into e वेक्टर माने q into e into minus j cap ता माने इलेक्ट्रिक फोर्स आसुची इन द नेगेटिव y डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स केते आसीबो q into v क्रॉस b ताको मिले कोन लिखिबा q into v होची v I cap क्रॉस b होची केते b into minus k cap ठीक अछि तो क्यू वी बी आई क्रॉस माइनस के ठीक अच्छे आई क्रॉस माइनस के जहाँ के क्रॉस आई से आई क्रॉस माइनस के जहाँ के क्रॉस आई से और के क्रॉस आई होची जे कैप तो देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स अच्छी एलोंग माइनस जे कैप मैग्नेटिक फोर्स अच्छी एलोंग प्लस जे कैप माने एलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो इफ they have opposite direction and if they have the same magnitude then they will cancel each other so this is the
principle or the concept behind velocity selector. So velocity selector is a device which can filter out charged particles having a certain velocity, and we have to adjust the values of electric field and magnetic field as per the velocity which we want to filter out. ठीक अच्छे जदि आम वेलोसिटी को चेंज करदेबा जदि आम किसी अलग स्पीड चार्ज पार्टिकल को आम यदि फिल्टर आउट करवा accordingly we have to change the values of electric and magnetic field, but we have to ensure that the two forces, electric force and magnetic force, should be opposite to each other. So students, that's all for this lecture, and I hope that you have understood the concept behind this velocity selector. But still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. So again, we will meet in the next video. So till then, have a nice day and bye bye.